Hello friends, today I'm going to start. As I was teaching you, I was discussing few topics of computer science UGC net. So yesterday I have discussed COCOMO model, and I have told also that in COCOMO model you need to keep few things in mind. Like first of all, what is COCOMO model? So COCOMO model एक मॉडल है जिसमें हम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में जो कॉस्ट होती है और जो एफर्ट होती है और जो शेड्यूल होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कोकोमो मॉडल थ्री टाइप्स का होता है, बेसिक और इंटरमीडिएट और एक और ये कुछ कोएफिशिएंट है बेसिक कोकोमो मॉडल का। ये कोएफिशिएंट हमें लर्न करने होते हैं बिकॉज हमें फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करनी होती है एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट एफर्ट, ई फॉर एफर्ट, टी फॉर टाइम एंड सी फॉर कॉस्ट। तीन चीज हमें कैलकुलेट करने को होता है। So now the next topic is the TCP/IP, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. And which kind of questions are going to come, that also we will discuss. Question किस तरह के आते हैं? The TCP/IP Transmission Control Protocol or Internet Protocol model is a suite of communication protocol used to interconnect network device on the internet. Protocol क्या होता है? Protocols are the set of rules and regulations which are needed for proper transfer of data or information between computer system. And we have different kind of protocol. उसमें एक है TCP/IP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol. ये एक पैकेज है, इट इज अ सूट। जैसे ओपन ऑफिस इज अ पैकेज जिसके अंदर में हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस इज अ पैकेज, लाइक दैट वी हैव TCP/IP इज अ package. So TCP/IP model is also known as the Internet Protocol suite and consists of four abstraction layers. TCP/IP में और OSI लेयर में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड लेयर्स में हमारे पास डिफरेंट layers है। ये TCP/IP divided into different layers. You can see application layer, transport layer, internet layer, and network access layer. So what is application layer? The application, if I'll increase the size so that the visibility will be more. So let me increase the size. So what is application layer? The application layer, तो हमारे पास TCP/IP में एज मैंने बताया डिफरेंट लेयर्स है। एप्लीकेशन लेयर क्या है? प्रोवाइड वेरियस प्रोटोकॉल दैट एप्लीकेशन यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये प्रोटोकॉल है जिसे बेसिकली एप्लीकेशंस यूज करते हैं। अभी हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, हमारे पास हर चीज़ का ऐप है जो हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ concept of study of how the network or information is passed. We have different process also, जैसे we have one is play store जहाँ से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। वो एप्लीकेशन कैसे काम करता है, उनके बीच कैसे कनेक्टिविटी होती है। फिर हम वेबसाइट की पढ़ाई करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करते हैं, फिर हम जो भी काम इंटरनेट में हो रहा है इन सब की पढ़ाई करते हैं। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल है जिसमें एक है TCP/IP और एक है OSI प्रोटोकॉल। तो TCP/IP में 4 लेयर है और OSI में शायद टोटल 7 लेयर्स है। और इन सब लेयर्स का यूज ही हमें पढ़ना है। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं, जैसे केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो विच प्रोटोकॉल इज यूज टू कम्युनिकेट with each other? Which protocol helps the application to use to communicate with each other? कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन को हेल्प करता है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके? तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये है एप्लीकेशन लेयर। This layer include protocol for email, file transfer, web browsing and more. ये भी क्वेश्चन आता है कि application layer is responsible for which task. So application layer is responsible for email, file transfer, web browsing and more. हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि इन प्रोसेस के लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। Now protocols. HTTP Hypertext Transfer Protocol। HTTP जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने आपको बताया जब व्हेन आई वाज टीचिंग कि हाउ
the how we request something from the web, Google or web browser, and how we there is a text file sent from our sender computer to the web server, and then it is called HTTP request. And when there is a cookie transferred between the web server and the sender computer in the form of a response, and it is called HTTP response. मैंने यहाँ पे आपको सिफर टेक्स्ट का भी कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे HTTP हेल्प करता है व्हेन वी यूज टू एंटर द पासवर्ड। जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं अपना ईमेल और पासवर्ड में, तो पासवर्ड जब करेक्ट होता है तो HTTP का सिंक होता है, सिंक्रोनाइज करता है कि वेदर द पासवर्ड इज करेक्ट। तो हमारे कंप्यूटर से वेब सर्वर में एक टेक्स्ट फाइल सेंड होती है विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अगर वो रॉन्ग होता है तो हमें ऑथेंटिकेशन नहीं मिलती और हम लॉगिन नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो हमारा पासवर्ड है हमारे और वेब सर्वर के बीच होता है, तो ये जो काम करता है उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। HTTP एस जब लिखा होता है तो एस मीन सिक्योर। आप जब देखते हो किसी भी वेबसाइट में HTTP एस लिखा है मीन्स वो सर्वर सिक्योर है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल के ट्रांसफर के लिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल मेल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप समझ सकते हो हाउ वी यूज टू राइट अ मेल। हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए, जैसे जीमेल का प्रॉम्प्ट है, याहू का प्रॉम्प्ट है, तो ईमेल लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि सेंडर का ईमेल एड्रेस, रिसीवर का ईमेल एड्रेस, देन ईमेल का कंटेंट, देन थैंक्स, रिगार्ड्स। तो ये जो पार्टिकुलर जो कंटेंट है वो बस SMTP ही उसको प्रोसेस कर सकता है, और जो फाइल को ट्रांसफर करने का है वो बस FTP कर सकता है। FTP की प्रोग्रामिंग वैसी होती है। DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम, हर पार्टिकुलर डोमेन का एक नाम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, जैसे डी google.com, तो .com एक डोमेन है। .com मीन्स कॉमेरिकल, .gov मीन्स गवर्नमेंटल। तो ये सब है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशंस का कम्युनिकेशन को के लिए हेल्प करता है कि हाउ द एप्लीकेशन विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये क्या क्या काम करता है, इसके थ्रू हम ईमेल, फाइल ट्रांसफर और वेब ब्राउजिंग करते हैं। तो ईमेल है तो सिंपल SMTP आएगा, फाइल ट्रांसफर है तो FTP आएगा, वेब ब्राउजिंग है तो HTTP आएगा। तो इससे हम और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि इन विच ऑफ द लेयर ऑफ TCP IP we use file transfer and which protocol is responsible for file transfer. So in the application layer of TCP, we use FTP to file transfer. Now transport layer क्या करता है? Transport layer is responsible for end-to-end communication and data transfer between device. Transport means sender से receiver में data transfer हो रहा है या नहीं। एंड टू एंड कम्युनिकेशन मीन सेंडर ने डेटा जो सेंड किया वो सेंड हुआ या नहीं, और रिसीवर ने उसको रिसीव किया या नहीं, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। It provide reliable or unreliable delivery depending on the protocol used. Reliable means data sent हो गया, unreliable means data का ट्रांसफर रुक गया या फिर वो ठीक से सेंड नहीं हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क यू आर यूजिंग। अगर हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो होता है तो हमने देखा है कि हमारी फाइल अपलोड नहीं होती, हमारा डेटा सेंड नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हो ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास TCP IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइल बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो इसमें हमारे पास TCP आएगा एंड UDP आएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP इंश्योर करता है रिलायबल, ऑर्डर्ड एंड एरर चेक डिलीवरी ऑफ डेटा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज यूज फॉर रिलायबल, ऑर्डर्ड एंड एरर चेकिंग। तो एरर चेकिंग किस में होती है, तो वो TCP में होती है। रिलायबल डेटा किस में सेंड होता है, TCP में होता है। ऑर्डर्ड मीन सीक्वेंस किस में होता है, वो TCP में होता है। UDP प्रोवाइड करता है अनरिलायबल, और जो डेटा रिलायबल नहीं है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा
कि डेटा रिलायबल भी हो सकता है डिलीवरी और अनरिलायबल भी हो सकती है। तो जो रिलायबल है वो टीसीपी कर रहा है और जो अनरिलायबल है वो यूडीपी कर रहा है। कनेक्शन लेस सर्विस दैट इज फास्टर देन टीसीपी। नाउ इंटरनेट लेयर क्या करता है? हैंडल द मूवमेंट ऑफ पैकेट अराउंड द नेटवर्क। इंटरनेट लेयर में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया पैकेट का। हम जब लेयर्स पढ़ते हैं या फिर प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो हम पैकेट्स फ्रेम्स पढ़ते हैं, कहाँ पे फ्रेम्स यूज होता है, कहाँ पे पैकेट्स यूज होते हैं। तो इंटरनेट लेयर हैंडल द movement of packet around the network. तो which layer is responsible for transfer of packet? तो क्या होगा? इंटरनेट लेयर। It routes packet across multiple network from the source to destination. Which layer is responsible for transfer of packets from source to destination? तो वो भी हो जाएगा इंटरनेट लेयर। यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? आईपी दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी, Internet Control Message Protocol and ARP Address Resolution Protocol and more. IP क्या करते हैं? We are talking about internet. तो इंटरनेट में कौन सी इंटरनेट में जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, everything is related to internet only. IP routes packet across the network. Packets network में ट्रांसफर हो रही है। ICMP क्या करते हैं? यूज फॉर एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। आईसीएमपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये मैसेज को कंट्रोल करता है, इंटरनेट कंट्रोल वेदर द मैसेज इज जेन्युइन और नॉट। एरर मैसेज ये क्या करता है? इफ जैसे हम अगर रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो हमारे पास एरर वैलिडेशन होता है जो हमें बताता है कि रॉन्ग पासवर्ड। तो आईसीएमपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द मैसेज दैट योर पासवर्ड इज रॉन्ग एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। नाउ एआरपी क्या करता है? दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मतलब जैसे हमने सही एड्रेस डाला या नहीं। रिजॉल्व द आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, हमने सही आईपी एड्रेस डाला कि नहीं। आप जानते हो आईपी एड्रेस 4 नंबर्स का ब्लॉक होता है, मैक एड्रेस भी वैसे नंबर्स होते हैं। नाउ नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर को बोलते हैं लिंक लेयर भी बोलते हैं। डील्स विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट। फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इसको लिंक लेयर भी बोलते हैं। इंक्लूड द प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट ऑन द लिंक एंड फिजिकल लेवल इंश्योरिंग डेटा इज करेक्टली फॉर्मेटेड फॉर ट्रांसमिशन ओवर द हार्डवेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को देखता है। इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ऑपरेट द लिंक एट फिजिकल लेवल। फिजिकल मतलब विजिबिलिटी हो रही है। इंश्योरिंग डेटा इज करेक्टली फॉर्मेटेड फॉर ट्रांसमिशन ओवर द हार्डवेयर। हार्डवेयर में डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे ईथरनेट प्रोटोकॉल जो वाईफाई होता है, वाईफाई की जो हम कनेक्टिविटी करते हैं, IEEE 802.11, P2P जो हम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जब हम एक लैब सेटअप करते हैं, तो जब हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं विद अ सर्वर, तो हम कैसे वाईफाई सेटअप करते हैं सो दैट जब हम कोई एग्जाम के लिए लैब सेटअप करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वाईफाई सेटअप करना होता है प्रॉपरली, हमें हाई बैंडविड्थ की डेटा चाहिए होती है। तो वहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर काम करता है। कंपैरिजन विद ओएसआई, मैंने आपको बताया कि दो मॉडल्स है, टीसीपी आईपी एंड ओएसआई। टीसीपी आईपी मॉडल इज सिमिलर टू ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, but has few layers. OSI model has 7 layers. मैंने आपको जैसे बताया था कि OSI में 7 layers है, TCP में 4 लेयर। OSI में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये 7 लेयर्स। कौन कौन? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। TCP/IP model condenses the OSI model application, presentation, and session layer into a single application layer. TCP/IP model क्या करता है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को एक ही लेयर में कंपाइल कर देता है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, और कंबाइन द डेटा लिंक एंड फिजिकल इनटू नेटवर्क एक्सेस लेयर, और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर में वो कंबाइन कर लेता है, जबकि OSI में ये डिफरेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच लेयर ऑफ टीसीपी इज कंबाइनिंग एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, तो वो होगा एप्लीकेशन लेयर। एंड विच लेयर कंबाइन द डेटा लिंक एंड फिजिकल, तो वो हो जाएगा नेटवर्क एक्सेस लेयर।
नाउ डायग्राम ऑफ टीसीपी/आईपी, ये कुछ डायग्राम है जैसे टीसीपी/आईपी एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस, हमने जो अभी पढ़ा। एप्लीकेशन में आएगा एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस। ट्रांसपोर्ट में टीसीपी, यूडीपी। टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reliable data transfer and UTP unreliable data transfer. Internet protocol ICMR, whether the whatever password you have entered is correct or not. Address resolution, whatever address you are putting is correct or not. Network access, whether Wi-Fi password or you have set up properly for the internet to make a online examination or not. Now function of key protocol. HTTP and HTTPS used for web pages request and transmission. HTTP मैंने बताया HTTP request and response, HTTPS मैंने बताया is used for secure। मैंने ये भी बताया कि HTTP request and response cycle होता है। FTP is used for transfer of file between system, SMTP for sending mail, DNS domain का नाम सही है क्या नहीं, TCP reliable audit और error checking और stream of data, UDP unreliable होता है, less reliable होता है, IP क्या करता है, routes packet between the device। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट, तो आंसर होगा नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। So TCP/IP model is the foundation of how data is transmitted over the internet, and understanding it in the crucial for networking and IT profession. So I hope you have understood TCP/IP and OSI layer. These two concepts are very easy and very important for all the examination. So till then, thank you very much.